गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? कंपनी जब भी लॉस में या इसमें जाता है तो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करता है, उसे कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. Now see, the term reconstruction means reorganizing the capital structure of a company, including the reduction of the claim of both the classes of shareholders and the creditors against the company. Sick companies, that is loss-making companies, may be taken over by the profit-making companies. However, in case of huge losses, assets are overvalued, यानी assets का valuation कम होगा या फिर ज़्यादा होगा और undervalued. In such cases, company may go for reconstruction. It may be external or internal reconstruction. There may be two types of reconstructions, that is external or internal. The company can be reconstructed internally or externally. It means two types of reconstruction is possible. External reconstruction. In case of external reconstruction, a new company is formed to take over the business of an existing company. यानी एक्सटर्नल में क्या होता है, एक नया कंपनी ही फॉर्म हो जाता है जो एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेता है. It has suffered huge losses and which is in bad financial position. The vendor company goes into liquidation and its business is taken over by the new company. अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी क्या, खुद ही अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना. In case of internal reconstruction, the capital structure of the company is reorganized to infuse new life in the company. It includes alteration, reduction, and reorganization of share capital of the company. अभी सबसे पहले what is meant by alteration of share capital? Share capital में changes लाना मतलब क्या है? देखो, a limited company authorized by its articles of association can alter the capital clause of the memorandum of association. As per section 61 of the Companies Act 2013, a company can alter its share capital. The alteration of share capital may be in the following different ways. अभी देखो टोटल 5 ways है, 6 ways है. सबसे पहला, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स. कंपनी चाहे तो अपना शेयर कैपिटल बढ़ा सकता है. कैसे बढ़ाएगा? तो न्यू शेयर्स इशू करके. अगर वो नया शेयर्स इशू करके कंपनीज का शेयर कैपिटल बढ़ा सकता है. नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. कंसोलिडेशन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन. यानी अगर 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, कैन बी कंसोलिडेटेड इन 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. अब देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इट इज रिमेनिंग सेम. 5000 इंटू 10 करो तो तुम लोगों को आएगा 50,000. और वैसे ही यहाँ पे 500 इंटू 100 करो तो भी 50,000 आएगा. तो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू, ओनली द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैन बी चेंज. Subdivision of shares. Subdivision refers to conversion of shares of the higher denomination into shares of smaller denomination. यहाँ पे उल्टा होता है. अगर मेरे पास 5000 shares of ₹100 each है तो उसको मैं सब डिवाइड करूंगा 50,000 shares of ₹10 each में. अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा वैल्यूएशन अमाउंट, टोटल अमाउंट वही रहेगा, खाली उसका फेस वैल्यू चेंज होगा. कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. अभी जो फुल्ली पेड अप शेयर्स रहता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक. अब कंपनी में कन्वर्ट इट्स शेयर्स इनटू स्टॉक. स्टॉक्स में बी इन फ्रैक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ शेयर्स. कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हमको किसका परमिशन लगने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट. Now next is surrender of shares. In a reconstruction scheme, the shareholders may be required to surrender a part of their shareholdings.
such as surrender may be either before immediate cancellation or for issue to some of the creditors of the company in satisfaction of their claim. अभी सरेंडर मतलब क्या है? लाइबिलिटी कम होना. इन्हें लोगों को हम कह सकते हैं कि तुम लोग अपना शेयर्स सरेंडर करो, उसका पार्ट या होल, यानी तो हमारा अपने आप लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नेक्स्ट है कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर. अभी जो अनइश्यू किया है हम लोगों ने, अभी हमेशा हर शेयर इशू होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी वो शेयर अनइश्यूड भी रह सकता है, जो बाद में इन फ्यूचर हम लोग करेंगे करके, तो वो हिसाब से हम लोगों को वो अनइश्यूड शेयर्स हम लोग कैंसल कर सकते हैं. इन केस अ कंपनी कैंसल्स इट्स अनइश्यूड शेयर्स, it does not require any accounting entry to be passed. The authorized share capital of the company will stand reduced by the amount of unissued shares now cancelled. यानी जो भी कैंसल हुआ है शेयर वो अपने आप कैंसल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा. अभी लीगल एस्पेक्ट्स, अभी लीगली क्या क्या है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम should be framed by careful study and proper valuation of assets and liabilities. It involves a compromise or arrangement between the company and its members or its creditors. However, following aspects should be carefully taken care of while framing the scheme of internal reconstruction. अभी internal reconstructions करते समय क्या क्या जरूरी है देखो. फर्स्ट, for change in share capital in any form, it should be considered as a provision of the memorandum of association and article of association, and in case of required, company should alter the provisions in memorandum of association and articles of association. Company is required to give a notice to the registrar of companies within 30 days of passing this resolution. Sanction of SEBI is necessary. SEBI means called Securities Exchange Board of India. Board resolution is necessary to effect the alteration. ये सब legal formalities हैं. अभी section 66 of Companies Act says about capital reduction. Now, what is meant by capital reduction? Internal reconstruction means the reduction of capital to cancel any paid up share capital which is lost due to the course of business that is not represented by the real value of assets. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यू अपना कम हो रहा है. A company limited by share capital or limited by guarantee are having share capital may be a special resolution reduce share capital by following ways. अभी कौन सा वे है? राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल, रिफंडिंग सरप्लस पेड अप कैपिटल, reducing the liability of members for uncalled capital. A company can reduce its share capital only when each of the following condition is satisfied. The articles of association of company must permit such reduction. यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने उनको परमिशन दिया हुआ रहना चाहिए. जो भी हम लोग रिडक्शन करने वाले हैं कैपिटल में, अगर उसमें परमिशन नहीं है तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन नहीं कर सकते हैं. The company passes special resolution for reducing its share capital. The company obtains the confirmation of the court. ये 3 conditions है. उन लोगों को कोर्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा कि हम लोगों को अपना वैल्यू कम करना है या ज्यादा करना है. अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के अलग अलग मेथड्स है. ये देखो, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे मैंने बताया था कि सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइसा वर्सा, ये दोनों मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया. वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट मतलब क्या है कि जो भी राइट्स शेयर होल्डर का रहेगा वो कम या ज्यादा करेंगे. फॉर एग्जांपल, a company may have different classes of shares with different rights attached to them, such as right to dividend, voting, repayment of capital, etc. Any of these rights may be altered subject to the provisions of company's law. It may be authorized by articles of association of the company. The board should approve the scheme of variation of the class rights by passing proper resolution. A separate meeting of particular class of shareholders must be. जिस class of shareholders का तुम लोग rights कम कर रहे हो
उसका उनको ये करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा. The consent of the shareholders, at least 3/4 of the shares of the class concerned must be obtained. इन्हें 75% लोगों का परमिशन मिलना चाहिए. फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. रिडक्शन मतलब क्या है? वैल्यूज कम करना. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स following three things: reducing the liability of shareholders in respect of unpaid amount of shares. यानी जो भी अनपेड अमाउंट रहेगा उसके बारे में रिडक्शन करना. पेमेंट ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इज मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट. कैंसिलेशन ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स. बाद में नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. यानी यहाँ पे हम लोग कंपनी अपना कॉम्प्रोमाइज करता है कि कितना हम लोग पे कर सकेंगे या कितना नहीं, ये सब सोच के हम लोग ये करेंगे. और लास्ट है सरेंडर ऑफ शेयर्स. सरेंडर ऑफ शेयर्स मैंने एक्सप्लेन किया था अभी कि लाइबिलिटी कम करना, जहां पे हम लोग शेयर्स को सरेंडर करने को बोल सकते हैं. अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर तुम लोगों को पूछा जा सकता है. अभी हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक क्या देखा कि व्हाट इज मेंट बाय रिकंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है. अभी इसका जो जर्नल एंट्रीज है वो मैं तुम लोगों को पीडीएफ फॉर्म में पहले दूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज आवर सेकंड टॉपिक. पहला टॉपिक आई थिंक सो सबको सब समझ में आ गया है. regarding shares and debentures, personal investment account, जो मैंने तुम लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ था. अभी देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. फर्स्ट मीनिंग, इट इज इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी. एक्सटर्नल में इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड टेक ओवर. लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब क्या है? द कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड. यहाँ पे कंपनी पूरा बंद नहीं हो रहा है. द कंपनी इज लिक्विडेटेड यानी पूरा क्लोज करके न्यू कंपनी फॉर्म हो रहा है. टेक ओवर, इट डज नॉट इन्वॉल्व टेक ओवर ऑफ बिजनेस. क्यों नहीं हो रहा है टेक ओवर? क्योंकि हम लोग अपना ही रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. वी आर नॉट सेलिंग अवर बिजनेस, सो इट इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेक ओवर ऑफ बिजनेस. इट इन्वॉल्व्स टेक ओवर ऑफ बिजनेस. यहाँ पे क्या है? बिजनेस न्यूली टेक ओवर हो रहा है. New company, no new company is formed. A new company is formed to take over the business. अब यहाँ पे नया कंपनी फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. यहाँ पे नया कंपनी फॉर्म हो रहा है. ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. मोड, इट मे टेक प्लेस थ्रू फ्रेश इशू, कंसोलिडेशन, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स. ये देखो इंटरनल में क्या क्या हो सकता है. इट मे टेक प्लेस थ्रू द फ्रेश इशू, यानी नया शेयर्स इशू करेंगे और हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे अपना रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी लॉसेस है उसको रिकवर करने के लिए. सब डिविजन ऑफ शेयर्स और कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स. इट मे टेक प्लेस थ्रू लिक्विडेशन एंड टेक ओवर. लीगल फॉर्मेलिटीज, दे आर कंसर्न्ड विद अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अभी ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. यहाँ पे दे आर कंसर्न विद लिक्विडेशन एंड टेक ओवर. ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज टू राइट ऑफ द लॉसेस आउट ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द क्लेमेंट्स. अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू राइट ऑफ लॉसेस, जो भी लॉस हो रहा है वो हम लोग राइट ऑफ करेंगे. कैसे करेंगे? जो क्लेमेंट्स है उन लोग सैक्रिफाइस करेंगे थोड़ा बहुत अपना और लॉसेस कम हो जाएगा. एंड प्लेस द कंपनी ऑन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस. The objective is to take over and increase the competitive strength. Next, it is done as per section 66 of the Companies Act 2013. Any internal reconstruction take place as per section 66 of the Companies Act 2013. It is done as per the section 319 of the Companies Act 2013. It is done as per section 319. तो ये हो गया इनका डिस्टिंग्विश. एक बार ये देख लो तुम लोग ध्यान से, लिख के लेना है डिस्टिंग्विश, बिकॉज
एग्जाम में डिस्टिंग्विश थ्योरी पार्ट में पूछा है उन्होंने। अभी रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एंड प्रोफॉर्मा वी विल डिस्कस। स्टूडेंट्स, वी हैव learned in this chapter up till now। ये थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, बाद में टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जहाँ पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन है। फिर बाद में अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या रहता है, जैसे कि इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, सरेंडर ऑफ शेयर्स। फिर बाद में हम लोग देखे कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, उसका लीगल एस्पेक्ट्स, कौन सा लीगल एस्पेक्ट से। फिर बाद में व्हाट इज कैपिटल रिडक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपिटल रिडक्शन ये अच्छे से जानना है, क्योंकि हम लोगों को जो सम्स हम लोग करने वाले हैं वो कैपिटल रिडक्शन के ऊपर ही ज्यादा है, जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फिर बाद में हमने देखा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स was explained to you, and the distinguish between internal reconstruction and external reconstruction, which is most important। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे नियरली जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज नियरली देयर आर 32 journal and 35 journal entries and a format of capital reduction account। अभी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मेन है इसमें, ये लेसन में, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इट इज जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोगों को एडजस्टमेंट्स पढ़ना है। ये सब एडजस्टमेंट्स के ऊपर से ही हमें सम सॉल्व करना है पूरा जर्नल एंट्रीज। तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल रिडक्शन। दिस आल्सो टॉपिक कवर्स फॉर 20 मार्क्स, यानी ये चैप्टर भी 20 मार्क्स के लिए तुम लोगों को एग्जाम में आएगा। पहला वाला जो चैप्टर था पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो भी 20 मार्क्स का है। ये ध्यान से देखो, बिकॉज टोटल सिलेबस अपना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो है टोटल 5 टॉपिक्स, और उसमें से एक है अपना थ्योरी, एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये टेक्स्ट बुक में सेकंड टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो हम लोग करने वाले हैं। फिर बाद में हम लोग लेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स, और बाद में लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। बिकॉज फाइनल अकाउंट्स ये जरा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जब कॉलेज स्टार्ट होगा फिजिकली, दैट टाइम वी कैन कंप्लीट इट, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसा है, जर्नल एंट्रीज के ऊपर है, वो तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज तो बाहर करना ही है, और उसके ऊपर ही बेस्ड वो सम्स है, तो वो तुम लोग इजीली समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है बाय बैक ऑफ शेयर्स। theory part we will be completing in 1 or 2 lectures, but you have to keep practicing the sums। अभी और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं सम्स देके रखूंगा तुम लोगों को पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, जो तुम लोगों को करना है। So I hope you understood this topic properly। अभी जनरल एंट्रीज और एक सम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे।